کا فریضہ ہے کہ سب سے پہلے خراج عقیدت انہیں پیش کرے. گواہ الحمدللہ اشاعت کے 11ویں سال میں ہے اور حیدرآباد میں یہ اردو صحافت اور ادب کی نان الائنڈ موومنٹ کی بنیاد ہے. کسی گروپ کسی جماعت سے بالا تر اپنی ایک نئی دنیا، ایک ایسی دنیا جس میں ہر ایک کے لیے جگہ ہے، جس میں کسی گروپ کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. یہ ہر ایک کا اخبار ہے اور اس اخبار کی جانب سے آپ سب کا میں تہ دل سے خیر مقدم کرتا ہوں. یہاں جناب مصطفیٰ مجاز بھی ہیں، جناب صلاح الدین نیئر بھی ہیں، جناب شریف اسلم صاحب بھی ہیں، جناب ضیاء الدین نیئر صاحب بھی ہیں، خاتون شعراء بھی ہیں اور سب اردو کے محبان موجود ہیں. آپ سب کا خیر مقدم ہے. شکریہ آپ سب تشریف لائیں. بہت بہت شکریہ جناب پرویز صاحب. ڈاکٹر بیدل حیدری نے فیض کے بارے میں کہا تھا، جو شاید پرویز صاحب کی تقریر کا اگر میں نچوڑ کہوں تو یہی ہو سکتا ہے. فیض کا لہجہ تو سورج کی طرح دنیا میں، فیض کا لہجہ تو سورج کی طرح دنیا میں، کل بھی تابندہ تھا اور آج بھی تابندہ ہے. فیض مر کر بھی زمانے میں ابھی زندہ ہے. اور میں انہی الفاظ کے ساتھ دعوت دینے جا رہا ہوں جناب افتخار شریف صاحب کو، جو ہمارے آج کے مہمان اعزازی ہیں، صدر فیڈریشن آف انڈین ایسوسی ایشن شکاگو سے، کہ وہ اس موقع پر اپنے خیالات پیش کریں. جناب افتخار شریف صاحب. حضرین محفل، سب سے پہلے آپ سب کو میرا سلام. اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے مانے ہوئے اردو کے قدردان اور یہاں کے ہیں سب اپنی اپنی جگہ کچھ نہ کچھ ایسوسیشن یا کہیں نہ کہیں آپ کی خدمات اردو کے لیے ضرور ہے. نہ ہی صرف ہندوستان بلکہ ہر ملک میں آپ لوگوں کی خدمات اردو کی جاری ہے. ایسے بڑے شاعر کے بارے میں جیسا کم کیا بتاؤں، لیکن اتنا ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ فیض احمد فیض ایک ایسے شاعر تھے جو نہ ہی صرف بیوٹی اور لف پہ بولتے تھے، بلکہ ظلم جہاں ہوتا تھا تو اپنی آواز اپنی پوئٹری کے ذریعے اپنی شاعری کے پیس ایوارڈ 1983 میں دیا گیا تھا. اور یہی پیلسٹائن میں بھی اس قسم کے جو گڑبڑ ہو رہی تھی اس زمانے میں، جب بھی یہ کافی اپنی شاعری سے اور اپنے اسپیچوں سے اس کا مذمت کر رہے تھے، اور اسی وجہ سے شاید ان کو نوبل پیس ایوارڈ جب ان کو نامینیٹ کیا گیا تھا زیانسٹ اور دوسرے وجوہات کی بنا ان کو نوبل پرائز نہیں ملا، لیکن وہ ایک ہی شخص سے ایشیا کے ایک ہی پوئٹ تھے جسے نوبل پرائز کا جو ہر سال دیکھتا ہوں، ہر ویک دیکھتا ہوں کہ جو تبدیلی گواہ میں آ رہی ہے. پتہ نہیں آپ لوگوں کو انٹرنیٹ کا ان لوگوں کا ایڈیشن کی طرف سے آج دنیا میں گواہ ہر جگہ دیکھا جائے. بھائی رفیق بھائی اور سارے لوگ مل کے جو پروگرام رکھے ہیں، سپورٹ میں ظفر جاوید بھائی صاحب کی سپورٹ ہمیشہ سے رہی ہے پیپر کو، اور آپ سب کی سپورٹ ہمیشہ رہی ہے. آج اس دن کا اور آج ان کی یاد، فیض احمد فیض کی یاد کو تازہ کرتے ہوئے گواہ نیوز پیپر اور سارے آپ لوگ آنے کی وجہ سے یہ پروگرام کو کئی چارٹ بہت شکریہ جناب افتخار شریف صاحب. خواتین حضرات، جیسا کہ افتخار شریف صاحب نے کہا کہ فیض نے جہاں پر خوبصورت الفاظ کو اپنے کلام میں سموتے ہوئے جہاں لوگوں کو ایک طرح سے تفریح فراہم کی، وہیں وہ ظلمت اور مظلوموں کی بھی آواز بن گئے. اور انہی کے لیے کہا گیا تھا کہ موت آ جائے گی ظلمت کے پرستاروں کو، موت آ جائے گی ظلمت کے پرستاروں کو، پوری دنیا میں جب انسان فروزاں ہوگا فیض ہر دور کی تاریخ کا عنوان ہوگا. اور یہی وجہ ہے کہ آج فیض کے انتقال کو 26 سال
1 माह और 3 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन आज जब हम फैज़ की याद मनाने जा रहे हैं और उन्हें 21वीं सदी में खराज तहसीन पेश करने के लिए यहाँ जमा हुए हैं, तो यहाँ पर ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली बहुत सारी शख्सियतें मौजूद हैं। और मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर उर्दू की एक कहकशा है, यहाँ पर दानिश्वर भी हैं, नक़ाद भी हैं, अदीब भी हैं, शुरा भी हैं और स्कॉलर्स भी हैं। तो मैं इन सब की मौजूदगी में हमारे एक और मेहमान एज़ाज़ी जनाब ज़फ़र जावेद साहब, जो अभी अभी सदरनशीन इंडियन चैप्टर इस्लामी डेवलपमेंट बैंक जिद्दा के जलील क़दर ओहदे पर फायज हुए हैं, उनसे अदबन गुजारिश करता हूँ कि वो इस मौके पर अपने ख़यालात का इज़हार करें। जनाब ज़फ़र जावेद साहब। डॉक्टर तकी आबिदी साहब, डॉक्टर सैयद ज़ियाउद्दीन अहमद साहब, इफ्तिखार शरीफ साहब, शुजात अली राशिद साहब, मोअज़्ज़िज़ीन, ख़वातीन और हज़रात, आज मैं सबसे पहले फाजिल हुसैन परवेज़ साहब और गवाह का मशकूर हूँ कि उन्होंने इतनी अच्छे उन्वान पर एक शाम मुनक़िद की और 2 ऐसे साहिबीन जो फैज़ साहब से और उनके कलाम से इतनी करीब से जो वाक़िफ़ हैं, ज़ियाउद्दीन साहब जो कई बार उनके साथ लंदन में और मुख्तलिफ़ जगहों पर सेमिनार में फैज़ साहब के साथ शिरकत की हैं, और तकी आबिदी साहब तो कई किताबें उनकी फैज़ पर शाया हो चुकी हैं। इन सब साहिबीन के साथ मुझे जो फाजिल हुसैन परवेज़ साहब आज पाबंद किए, मैं उनका मशकूर हूँ, तो आप मुझे इस काबिल समझे। फैज़ अहमद फैज़ साहब आप लोगों की मौजूदगी में, जो कि 1300-1400 सफ़ों की किताब लिख चुके हैं, उनके सामने मैं जुर्रत नहीं कर सकता और आपका वक्त ख़राब नहीं करना चाहूँगा कि जो है मैं कुछ कहूँ उन पे जब ये मौजूद हैं। इसकी ज़िम्मेदारी तो शायद इन्हीं के हाथों अच्छी है, मगर मैं समझता हूँ कि अल्लामा इक़बाल के बाद फैज़ अहमद फैज़ साहब का रोल इस कदर रहा है सब कॉन्टिनेंट पे और बिलखुसूस कम्युनिस्ट दुनिया पर और डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी पर, मज़लूमीन पर, बांग्लादेश की जंग के वक्त जो उन्होंने अमन के पर जो नज़में लिखी हैं और ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में जो यानी इनकलाबी और बाकी नज़में जो लिखी हैं, मैं समझता हूँ कि ये हर दौर के लिए जो है इनका कलाम हर चीज़ पर, हर मौजू पर जो है मौजूद है। जैसा हमारे इफ्तिखार शरीफ साहब बोले कि लफ़ पे भी लिखे हैं इन हिज़ वर्ड्स, तो यानी बहुत मुश्किल होता है कि इनकलाबी शायर रोमांस पे जो है लिखे, पीस पर लिखे और मुख्तलिफ शेड्स ऑफ कम्युनिज्म पे लिखे। फैज़ साहब, मेरा एक ही इनकाउंटर हुआ फैज़ अहमद फैज़ साहब से, जब वो हैदराबाद तशरीफ़ लाए थे तो निज़ाम कॉलेज तशरीफ़ लाए थे और वहाँ पर सालारजंग हॉल में उनका फेलिस्टेशन हुआ था और मुझे उनको इंट्रोड्यूस करने का मौका दिया गया था, क्योंकि उस ज़माने में ज़रा थोड़ी बहुत लीडरी भी कर लेते थे, हम कोशिश करते थे, तो क्योंकि स्टूडेंट्स यूनियन की तरफ से जो है उनको फेलिसिटेट किया गया था। तो I'm indeed proud and grateful that I could encounter somebody as great as फैज़ साहब। मैं आप लोगों का ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए मैं फिर से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और तकी आबिदी साहब और ज़ियाउद्दीन साहब को सुनने के लिए आप भी बेचैन हैं, हम भी बेकरार हैं। बहुत शुक्रिया फाजिल हुसैन परवेज़ साहब। बेहद शुक्रिया ज़फ़र भाई। ख़वातीन हज़रात, मैं सदर इजलास की इजाज़त से, अगर वो इजाज़त दें, तो इस मौके पर यहाँ तशरीफ़ फरमा एक हमारे मेहमान जनाब शरीफ असलम साहब 1 मिनट यहाँ कुछ कहना चाहते हैं। अगर सदर इजाज़त दें तो मैं 1 मिनट नहीं 2 मिनट जी तशरीफ़ लाएँ। मैं बहुत दूर से आया हूँ। काम आगाज़े बयां जो बड़ा ही रहम वाला है, निहायत मेहरबान और मुतमईन रहता है दिल।
उस काम के अंजाम से, मुतमईन रहता है दिल उस काम के अंजाम से जिसका हम आगाज़ करते हैं खुदा के नाम से। साहबो, मैंने नाज़िम तकरीब से दरख्वास्त की है कि मुझे 1 मिनट की बजाय 2 मिनट, और फिलवाखी में 2 मिनट में इंशाल्लाह आपसे इजाज़त चाहूँगा। सिर्फ एक बहुत ज़माने से बात थी, आए जहन में की सतह पे गुंज रही थी कि जश्न मखदूम के सिलसिले में हमको जिद्दा रहते हुए 30 साल हो गए। 30 साल में 2 मरतबा उनसे न्यात हासिल हुआ और उनके मुशायरे में शिरकत का मौका मिला, रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। और ये बात मैं आपके इल्म में लाने के लिए यहाँ सलाहुद्दीन नैयर साहब मौजूद हैं कि जश्न मखदूम के सिलसिले में जब फैज साहब हैदराबाद तशरीफ लाए थे तो 2 बातें बड़ी दिलचस्प हुई उस महफिल में। एक तो उन्होंने कहा कि भाई मैं बॉम्बे में मुशायरा पढ़ा था, अपनी जब गज़ल सुनाने के लिए उठ के खड़ा हुआ और मतलब मैंने सुनाया तो एक आदमी ने उठ के कहा ये नहीं मेहदी हसन की सुनाई है। बड़ा शर्मिंदा हुआ। उन्होंने कहा नहीं ये फैज साहब ये नहीं मेहदी हसन साहब की सुनाई, एक बात। और दूसरी बात ये कही थी उन्होंने, फैज साहब ने, यही जश्न मखदूम के सिलसिले में कि मेरी गज़ल का जो मतला है गुलों में रंग भरे बाद नौ बहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। तो इसका मतले का मिसरे सानी जो है बाजार हुस्न की किसी मकीन को बहुत पसंद आया और उनका नाम भी इत्तेफाक से गुलशन था, तो उन्होंने अपने कोठे पे ये मिसरा लिख के लगा दिया। बहुत शुक्रिया जनाब शरीफ हसन साहब, आपने हज़रे वादा 2 ही मिनट दिए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब इफ्तिखार शरीफ साहब हमारे आज की इस महफिल के सदर डॉक्टर सैयद ज़ियाउद्दीन अहमद शकीब साहब की शालपोशी और उन्हें नज़रान गुल पेश करेंगे। मैं जनाब इफ्तिखार शरीफ साहब से ख्वाहिश करता हूँ। जनाब सैयद फाजिल हुसैन परवेज़ हमारे आज के दूसरे मेहमान एजाज़ी जनाब इफ्तिखार शरीफ साहब को नजराना गुल पेश करेंगे और उनकी शालपोशी करेंगे। मैं जनाब फाजिल हुसैन परवेज़ साहब से हमारे आज के मेहमान खुसूसी डॉक्टर सैयद तक़ी आबिदी, जिन्हें मैं यहाँ पर मदऊ करने वाला हूँ, लेकिन इससे कबल के वो यहाँ आए और मैं आज के प्रोग्राम के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जनाब फाजिल हुसैन परवेज़ साहब से मैं ख्वाहिश करता हूँ कि वो उन्हें शालपोशी के ज़रिए यहाँ पर तहनीत पेश करें और नजराना गुल पेश करें। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, डॉक्टर सैयद तक़ी हसन आबिदी का नाम हैदराबादियों के लिए मुहताज तारुफ नहीं, सारी दुनिया के अदबी हलकों में डॉक्टर तक़ी आबिदी अपनी मुनफरिद शनाख्त रखते हैं। यूँ तो डॉक्टर साहब लेकिन उर्दू अदब से जुनून की हद तक इश्क है। शायरी, अदबी तहक़ीक़ और तनक़ीद का आला ज़ौक़ रखते हैं। अनीस, दबीर, ग़ालिब और अक़बाल आपने मुनफरिद ज़ाविये से इनका ख़ुसूसी मुताला किया है। हिंदुस्तान, ईरान, बरतानिया, न्यूयॉर्क और कनाडा में आपका क़याम रहता है। मुताला और तसनीफ़ आपके मशागिल हैं। आप 35 से ज़ायद किताबों के मुसन्निफ़ हैं। ये ज़रूरी नहीं कि जो कलम के धनी होते हैं वो बोलने पर भी क़ादिर हों, लेकिन डॉक्टर साहब न सिर्फ एक आला दर्जे के कलमकार हैं, बल्कि एक जादू बयान, मुखर्रिरी, मजाज लखनवी, मजरू सुल्तानपुरी जैसे हम असर शायरों की जगमगाती कहकशा में एक रोशन सितारा बनकर उभरने वाले शायर का नाम फैज़ था। इनकी शायरी आलम इंसानियत के दुख दर्द, उनकी उमंगों और उम्मीदों की तर्जुमान है। 2011 का साल फैज़ की 100वीं सालगिरह का साल है। इस मौके पर फैज़ की याद ताज़ा करने और उन्हें खराज पेश करने के लिए दुनिया भर में मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक़िद किए जा रहे हैं। आज का ये प्रोग्राम इसी सिलसिले की पहली कड़ी है और आज के मेहमान खुसूसी डॉक्टर सैयद तक़ी आबिदी ने
20वीं सदी के मुमताज़ तरक्की पसंद शायर फैज़ अहमद फैज़ की शायरी का भी खुसूसी मुताला किया है और फैज़ पर 1400 सफ़ात पर मुश्तमिल लाहौर पाकिस्तान से शाये की जाने वाली किताब जो दरहकीकत डॉक्टर सैयद तकी आबिदी ही की अनथक काविशों का समर है, हमें उम्मीद है डॉक्टर साहब की हैदराबाद में आमद का फ़ायदा उठाते हुए जैसा कि आज के हमारे कन्वीनर जनाब सैयद फाज़िल हुसैन परवेज़ ने कहा कि यहाँ पर हम ज़ियाउद्दीन शकीब साहब की मौजूदगी का भी फ़ायदा उठाना चाहते थे, चूँकि वो फैज़ के साथ कई नशिस्तों में शहनशीन पर मौजूद रहे थे, तो हमने ये सोचा कि इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा हमें कि हम फैज़ सदी की पहली तकरीब का हैदराबाद से आगाज़ करें। और जब हमने इस कोशिश का जब आगाज़ किया तो हर कदम पर हमें इसकी हौसला अफजाई ही मिली और आज हम ये तकरीब मुनक़िद करने के मौक़िफ़ में हैं। मुझे जनाब तकी आबिदी की मारिफत जो अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन लाहौर पाकिस्तान के जनाब सईद साहब हैं, राहत सईद साहब, उन्होंने ये पैगाम भी पहुँचाया है कि साल 2011 में फैज़ की तकारीब की जुमला 116 तकारीब दुनिया के मुख्तलिफ गोशों में मुनक़िद की जाएंगी। मुख्तलिफ अंजुमनों की जानिब से, बिलख़ुसूस मुहिब्बान फैज़ की जानिब से, उर्दू की तंजीमों की जानिब से फैज़ की तकारीब मुनक़िद की जाएंगी। लेकिन राहत साहब ने जो हमसे ख्वाहिश की है, उन्होंने ये कहा है कि आज की तकरीब के अलावा जितनी तकारीब भी हैदराबाद में मुनक़िद हों उनकी रुदात हम उन तक पहुँचाएँ ताकि वो साल के आखिर में जब फैज़ सदी की अख्तामी तकरीब मुनक़िद होगी तो उसकी जो रुदात शाया होगी उसमें इन तकारीब की रुदात को भी शामिल कर सकें। तो मैं आप तमाम से इस प्लेटफॉर्म की मारिफत ये ख्वाहिश करता हूँ कि आप जब कभी फैज़ सदी के सिलसिले की कोई तकरीब मुनक़िद करना चाहें तो हमें भी मदऊ करें, इंशाअल्लाह हम भी वहाँ शरीक रहेंगे। और इन्हीं अल्फाज के साथ, बल्कि फैज़ ने जो एक बात कही थी उस ख्याल के साथ मैं हमारे आज के मेहमान खुसूसी को मदऊ करने जा रहा हूँ। अपने अफकार की अशार की दुनिया है यही, अपने अफकार की अशार की दुनिया है यही, जाने मज़मू है यही, शाहिद माना है यही। और मैं इन्हीं ख्यालात के साथ हमारे मेहमान खुसूसी डॉक्टर सैयद तकी आबिदी को यहाँ मदऊ करने जा रहा हूँ। लेकिन इससे पहले मैं सदर साहब की इजाज़त से हमारे जो आज के गुलकार हैं जनाब रुकनुद्दीन को तहनीत पेश करने के लिए ख्वाहिश करता हूँ आज के मेहमान खुसूसी डॉक्टर सैयद तकी आबिदी साहब से कि वो हमारे रुकनुद्दीन साहब की शार पोशी और नजरान गुल के जरिए उन्हें तहनीत पेश करें, क्योंकि उन्होंने ही प्रोग्राम का आगाज़ किया था और इंशाअल्लाह इख्तिताम भी वही करेंगे। मैं गुजारिश कर रहा हूँ मेहमान खुसूसी डॉक्टर सैयद तकी आबिदी साहब से। जनाब फाज़िल हुसैन परवेज़ हफ्तावार दुआ की जानिब से हमारे शहनशीन पर मौजूद मेहमानों को यादगारी तोहफा पेश करना चाहते हैं। मैं उनसे ख्वाहिश करता हूँ कि वो ये लौह कुरान का ये अक्स है और ये सभी मेहमानों की खिदमत में पेश किया जा रहा है इदारे गवाह की जानिब से। मैं गुजारिश कर रहा हूँ डॉक्टर सैयद तकी आबिदी साहब से, वो आज के मौजू क्या ये फैज़ की सदी है अपने ख्यालात का इज़हार पेश करें। डॉक्टर सैयद तकी आबिदी। हफ्तावार गवाह के रूह रवां जनाब फाज़िल परवेज़ साहब और इस शहर के मारूफ अदबी और यूँ समझिए कि अदब की जान, अदब की आन, अदब की पहचान डॉक्टर शुजात अली राशिद साहब, सदर खर्चा के निशाना सदरस रौनक उर्दू गुलशन हैदराबाद की रूह रवां जनाब मुस्तर साहब और मैं डॉक्टर फातिमा परवीन साहिबा
निखत और तमाम असातिज़ा के यहाँ पर हैं। मैं बाज़ वक्त नाम लेते हुए बहुत से नाम भूल जाता हूँ, अपनी बुजुर्गवारी से मुझे माफ़ कर दीजिए। और गुफ्तगू क्योंकि तौसीई लेक्चर है, तौसीई लेक्चर की रूह यह है कि हर शख्स जब इस हॉल में दाखिल हो तो जब वापस जाए तो उसका जो इल्म है उसमें तौसी। मैं समझता हूँ डॉक्टर बेग साहब वहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं और जगह सामने है, अगर आप तशरीफ़ लाएँ तो ममनून हो। उर्दू के अदीब। तो गुफ्तगू जो होगी आज, आइए डॉक्टर साहब तशरीफ़ लाइए। गुफ्तगू की सदी यकीनन फैज़ के बारे में आप सब बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन एक छोटा सा 5 या 6 मिनट में मैं गुफ्तगू करूंगा। आप देखते हैं कि मेरा अंदाज यह है कि मैं आपसे गुफ्तगू करता हूं इस बातचीत में। वो तमाम मतालिब जो यहाँ से आपकी खिदमत में पेश करता हूँ वो मुस्तनद होते हैं, उसको आप हवाले के तौर पर इस्तेफादा कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं कि ये कहाँ लिखा है, ये आपने कहाँ से कहा। तो फैज़ जैसा कि अभी कहा गया